اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایپیسوڈ نمبر 29 میں داستان ایمان فروشوں کی آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خادم الدین البرک اور علی بن سفیان صرف رفیق کار ہی نہیں تھے بلکہ ان کی گہری دوستی بھی تھی اور وہ ہم عمر بھی تھے۔ انہوں نے کافی سارے مارکے اکٹھے لڑے تھے۔ دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پرانے ساتھی بھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرک نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپا رکھی تھی۔ علی کو معلوم ہوا تو اس نے البرک کے ساتھ اس ضمن میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس کی بیوی کی وساست سے اس کے گھر کا معمہ حل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے البرک کے مکان اور اس مکان کے درمیان اپنے جاسوسوں میں اضافہ کر دیا تھا جہاں البرک کی نئی بیوی رات کو جایا کرتی تھی۔ البرک کی پہلی بیوی کے ساتھ باتیں کیے 2 راتیں گزر گئی تھیں۔ لڑکی باہر نہیں نکلی تھی۔ جاسوس پوری رات بیدار رہے تھے۔ تیسری رات جب آدھی رات ہوئی تو آدھی رات سے تھوڑا سا پہلے علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے عملے اور اپنے ملازموں سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ وہ جب چاہے اسے جگا سکتے تھے۔ وہ ان حاکموں سے بڑا مختلف تھا جو کہ صرف آرام میں ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ اس رات علی کو ملازم نے گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا کہ عمر آیا ہے اور گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا، صحن کو جلدی سے عبور کیا اور باہر چلا گیا۔ اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا ملازم کو دوڑائیں، 10-12 سوار فوراً منگوائیں، اپنا گھوڑا جلدی تیار کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے ملازم کو 14 مسلح سوار اور اپنا گھوڑا اور تلوار لانے کے لیے دوڑایا اور عمر سے پوچھا کہ کہو کیا بات ہے، جو کہ اس کا خاص ملازم اور جاسوس تھا۔ عمر اور آذر نام کے 2 جاسوس آصفہ کو دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کہیں جائے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ عمر بڑی خطرناک اطلاع لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری ہی البرک کے گھر سے سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی ایک عورت نکلی۔ 50-60 گز آگے گئی تو البرک کے گھر سے ہی اسی لباس میں ایک عورت نکلی۔ وہ بہت تیز اگلی عورت کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس سے ذرا دور ہو گئی تو وہ عورت رک گئی۔ دونوں جاسوس پیچھے چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی دیکھ نہ سکا۔ وہ تعاقب بھی چھپ کر کیا کرتے تھے۔ دونوں عورتوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے تالی بجائی، کہیں قریب سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے بعد میں آنے والی عورت کو پکڑنا چاہا۔ عورت نے اس پر کسی ہتھیار کا وار کیا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس آدمی نے بھی اس پر کسی ہتھیار سے وار کیا جو عورت پہلے آئی تھی۔ اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر وار کیا، اس کی چیخ سنائی دی۔ دوسری عورت نے اس پر ایک اور وار کیا اور آدمی کا وار بچایا بھی۔ دونوں عورتیں زخمی ہو گئیں۔ عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑا۔ آذر وہیں چھپا رہا، اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیز تجربہ کار لڑاکے سواروں کا ایک دستہ بھی تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ سوار اپنے گھوڑوں کے قریب سوتے تھے، زینے اور ہتھیار بھی ان کے پاس ہی رہتے تھے۔ انہیں یہ مشق کرائی جاتی تھی کہ رات کے وقت ضرورت پڑنے پر وہ چند منٹوں میں تیار ہو کر ضرورت کی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ وہ اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ علی بن سفیان کے ملازم نے دستے کے کماندار کو اطلاع دی کہ 14 سوار بھیج دو، تو وہ علی بن سفیان کے کپڑے بدلنے اور اس کا گھوڑا تیار ہونے تک پہنچ گئے۔ علی بن سفیان کی قیادت اور عمر کی رہنمائی میں وہ واردات کی جگہ پہ پہنچے۔ 2 سواروں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کے ساتھ تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کی مشعلیں بھی تھیں۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، ایک البرک کی پہلی بیوی تھی اور دوسرا آذر تھا، عمر کا ساتھی۔ دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آذر نے بتایا کہ وہ البرک کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو وہ اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کیے، وہ سنبھل نہ سکا، حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر نے مزید یہ بھی بتایا کہ دوسری عورت البرک کے گھر کی طرف نہیں گئی بلکہ ادھر گئی ہے جہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی۔ عمر کو اس گھر کا علم تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں سے کہا کہ وہ دونوں زخمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائیں اور ان کا خون روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ باقی سواروں کو وہ عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصفہ پہلے کئی بار جاتے دیکھی گئی۔ وہ پرانے زمانے کا بڑا مکان تھا۔ اس سے ملحق کئی اور مکان بھی تھے۔ پچھواڑے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ علی نے اپنے سواروں کو مکان کے دونوں طرف سے پیچھے بھیجا۔ 2 سواروں کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی اندر سے نکلے تو اسے پکڑ لو، بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مار دو اور ختم کر دو۔
सवार अभी चक्कर काट कर पिछवाड़े की तरफ जा ही रही थी कि दौड़ते घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई देने लगे। अली बिन सुफियान ने एक सवार से कहा, सर पट जाओ, अपने कमानदारों से कहो कि इस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाएं, अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाए। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज से अपने जासूसों को हुक्म दिया, एड़ लगाओ, ताक़ुब करो, एक दूसरे को नजर में रखो। और उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। ये रिसाले के चुने हुए घोड़े थे और उनके सवार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कई बार खिराज तहसीन भी हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाह सवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू ये बता रहे थे कि वो भी अच्छी नस्ल के बहुत तेज घोड़े दौड़ाने वाली हैं। ये शहर का पहला इलाका था जहां मकान की रुकावटें थीं, गलियां थीं जो घोड़ों के दौड़ के लिए कुशादा नहीं थी। फिर उनसे आगे खुला मैदान था। अंधेरे में घोड़े नजर नहीं आते थे, उनकी आवाजों पर ताक़ब हो रहा था। वो जब खुले मैदान में गए तो उनका छुपना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। उफ के पस मंजर में वो सायों कितना साफ नजर आने लगे और वो चार थे। उन्होंने कमो बेश 100 गज का फासला हासिल कर लिया था। वो पहलू ब पहलू जा रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर दो सवारों ने इसी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते हुए तीर चलाए। तीर शायद खता गए। भागने वाले दानिशमंद मालूम होते थे। तीर उनके करीब से या दरमियान से गुजरे तो उन्होंने घोड़े मजीद फैला दिए। वो इकट्ठे जा रहे थे। उनके घोड़े खुलने लगे। निहायत अच्छे तरीके से घोड़े एक दूसरे से खासे दूर हट गए। अली बिन सुफियान का दस्ता बहुत तेज था और फासला कम होता जा रहा था, मगर भागने वालों के घोड़े और ज्यादा एक दूसरे से हटते जा रहे थे। आगे खजूरों के पेड़ों का झुंड नजर आ गया। उनके घोड़े वहां इस तरह एक दूसरे से दूर हट गए कि दो दाएं तरफ और दो खजूरों के बाएं तरफ हो गए। ये जगह ऊंची थी। घोड़े ऊपर उठे और गायब हो गए। ताक़ुब करने वाले बुलंदी पर गए तो उन्हें आगे जो भागते साए नजर आए वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हो गए थे। फिर वो इतनी दूर हो गए कि उनके रुख ही बदल गए। अली बिन सुफियान जान गया कि वो उनके सवारों को मुंतशिर करना चाहते हैं। अली ने बुलंद आवाज से कहा, हर सवार के पीछे तकसीम हो जाओ, एक दूसरे को बताओ, एड़ लगाओ, फासला कम करो, कमानों में तीर डाल लो। सवार तकसीम हो गए। सबने कंधों से कमाने उतार कर तीर डाल लिए और तकसीम होकर एक एक घोड़े के पीछे गए। उनके घोड़ों की रफ्तार और तेज हो गई। टापुओं के शोरगुल में कमानों से तीर निकलने की आवाजें सुनाई दी। किसी ने ललकार कर कहा, एक को मार लिया है, घोड़ा बेकाबू हो गया है। इधर अली बिन सुफियान के साथ जो दो सवार थे उन्होंने बैक वक्त तीर चलाए। अंधेरे में तीर खता जाने का डर था और तीर खता जा भी रहे थे। फिर भी उन्होंने एक और घोड़े को निशाना बना लिया। ये घोड़ा बेकाबू होकर घूम कर पीछे को आया। एक सवार ने उसकी गर्दन में बर्छी मारी। दूसरे ने अपने घोड़े से झुककर उसके पेड़ में बर्छी दाखिल कर दी, मगर घोड़ा तवाना था, गिरा नहीं। सवार जिंदा पकड़ना था। अली के एक सवार ने बाजू बढ़ाकर एक सवार की गर्दन जकड़ ली। नीचे घोड़ा जख्मी था। वो रुकते रुकते रुक गया। उस पर एक आदमी सवार था और एक लड़की जिसे सवार ने आगे बिठा रखा था। लड़की शायद बेहोश थी। सहरा की तारीक रात में अब किसी सर पर दौड़ते घोड़ों के टापों की आवाजें भी नहीं सुनाई देती थी। सवारों की आवाजें और दुल की चाल चलते हुए घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सवार एक दूसरे को पुकार रहे थे, ललकार रहे थे। उनकी आवाजों से यह पता चलता था कि उन्होंने भागने वालों को पकड़ लिया है। अली बिन सुफियान ने सबको इकट्ठा कर लिया। भागने वाले पकड़े गए थे। उनके दो घोड़े जख्मी थे। उन घोड़ों को मरने के लिए सहरा में छोड़ दिया गया। भागने वाले 5 थे, 4 आदमी और एक लड़की। लड़की गिर पड़ी थी। भागने वालों में से एक ने कहा, हमारे साथ तुम लोग जो सलूक करना चाहो कर लो, मगर ये लड़की जख्मी है। हम उम्मीद रखेंगे तुम इसे परेशान नहीं करोगे। एक घोड़े की सीन के साथ मशल बंधी हुई थी, खोल कर जलाई गई। लड़की को देखा गया। निहायत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। उसके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उसके कंधे पर गर्दन के करीब खंजर का गहरा जख्म था। उससे इतना खून निकल गया था कि लड़की का चेहरा लाश की तरह सफेद और आंखें बंद हो गई थी। अली बिन सुफियान ने जख्म में एक कपड़ा ठूंस कर ऊपर एक और कपड़ा बांध दिया और उसे एक घोड़े पर डालकर सवार से कहा कि जल्दी जर्रा तक पहुंचे। वहां जल्दी का तो सवाल ही नहीं था। वो शहर से मीलों दूर निकल गए थे। कैदियों में एक बूढ़ा भी था। ये काफिला जब काहिरा पहुंचा तो सुबह तुलू हो रही थी। सुल्तान को रात के वाक़े की इतला मिल गई थी। अली बिन सुफियान अस्पताल गया। जर्रा और तबीब कैदी लड़की की मरहम पट्टी में और होश लाने के लिए बहुत ज्यादा मसरूफ थे। सवार ने उसे थोड़ी देर पहले पहुंचा दिया था।
अलबरक की पहली बीवी और आज़र होश में आ गए थे, मगर उनकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हस्पताल में मौजूद था। उसने अली बिन सुफियान को अलग करके कहा, मैं बहुत देर से यहाँ आया हूँ। मैंने अलबरक को बुलाने के लिए आदमी भेजा तो उसने अजीब बात बताई। वो कहता है कि अलबरक होश में नहीं है, उसके कमरे में शराब के प्याले और सराही मौजूद है। क्या वो शराब भी पीने लगा है? उसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बीवी घर से बाहर जख्मी पड़ी है। मैंने उसकी बीवी से अभी तक कोई बात नहीं की, तबीब ने मना कर दी है। उसकी एक नहीं 2 बीवियां हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, ये लड़की जिसे हम सहरा से लेकर यहाँ तक आए हैं, जिसको हमने पकड़ा है, ये अलबरक की दूसरी बीवी है। जरा जख्मियों को बोलने के काबिल होने दें, हमने बहुत बड़ा शिकार मारा है। अलबरक सूरज निकलने के बाद जागा। मुलाजिम के बताने पर वो दौड़ता आया। उसकी दोनों बीवियां जख्मी पड़ी थीं। उसे 4 जासूस दिखाए गए। वो बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे वो आसफा का बूढ़ा खाबन समझता रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह वारदात अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि ये जासूसों के पूरे गिरोह की वारदात थी और उसमें इसका मुतमद मुलव्विस भी था, जिसे फौज के तमाम राज और आइंदा के मंसूबे हर एक चीज़ मालूम थी। जो ही जख्मी बयान देने के काबिल हुए, उनसे बयान लिए गए। उनसे ये कहानी यूँ बनी कि अलबरक की पहली बीवी को जब अली बिन सुफियान ने बताया कि उसके खावंद की दूसरी बीवी मुश्तबे चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो वो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खावंद को और आसफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बिन सुफियान ने उसे कहा था कि जासूसों को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनके छुपे हुए साथियों का सुराग लिया जा सके। उसने अपने आप पर काबू पाया और आसफा पर गहरी नजर रखने लगी। उसने रात का सोना भी तर्क कर दिया। मौका देकर उसने उनके सोने वाले कमरे के उस दरवाजे में छोटा सा सुराग कर लिया जो कि दूसरे कमरे में खुलता था। रात को सुराग में से उन्हें देखती रहती थी। 2 रातें तो उसने यही देखा कि लड़की अलबरक को शराब पिलाती रही है और उरियानी का पूरा मुजाहरा करती थी। वह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बातें ऐसे अंदाज से करती थी जैसे वो उसका पीर व मुर्शिद हो। सलीबियों को बुरा भला कहती और वही बातें करती जो सुल्तान अयूबी के जंगी मंसूबे में शामिल थी। अलबरक उसे बताता था कि सुल्तान क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। आज की वीडियो हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।